Dear students, very good evening to you. And in the reference to our supplementary edition, we are going once again to summarize the next lesson, lesson number 5, which is a play. And in this play, there is an important character of Mr. Lamb and a boy who is 14 years old, Derry. Both are partially disabled. Mr. Lamb is matured man leading to old age, while Derry, a teenager who has one side face burnt with acid. Derry is downcast because of his burnt face and avoids the people's company because the people look at his face and comment. And in this escapement, by chance, he passes through Mr. Lamb's garden, finding it quiet and peaceful, and as a privacy, Derry sneaks away to Mr. Lamb's garden secretly, but finds surprised to hear Mr. Lamb's voice. And suddenly he meets a man like this. Derry becomes angry and decides to make a plan to go away from there. But somehow Mr. Lamb tries to explain the things very well. Derry always makes a question in different ways. Mr. Lamb is a matured man. He has experienced and studied the things very well. He is bold and fearless. Even disabled with one leg, having a 10 legs, he learned how to do the works in the garden. He is open-hearted and kind-hearted man likes the company of anyone. By the other hand, Derry, a teenager, always avoid the peoples, thinking that the people would see him and comment at him. But both meet each other and there is an argument to take the different things. Derry always blames the people and his burnt face, which makes him to think like negative in life. But in spite of all this, Mr. Lamb always explains him that there are other things which he can do and become a positive one in life. But Derry, being depressed, always thinks of his negativity and finally blames himself and other people to comment on it. Mr. Lamb gives him a different types of examples and mentions about a story who hides himself in the house because he has the fear that his feet falls on his skin, banana skin, and he slips away down the fall and the people will laugh at him. And also that while traveling on the road, a vehicle, a bus or motor bus, drive over him and to knock him down. And a girl with whom she or he falls in love and she cheats him away. And different kinds of things he was thinking in his mind. And what happened? One day, a picture in the room fell upon him and he died. Derry laughs at this very much, and Mr. Lamb also. After all, Derry himself tells different types of things, and finally, Mr. Lamb tries to answer all the questions very well. And Mr. Lamb explains him very well, but in spite of all these positive references, Derry remains stay at his burnt face, thinking that everything will change in the world, but his face would not change. And at last, Mr. Lamb tries to ignore him
and to move to the beach, saying that you will not come here again if you visit your home. Dairy finds challengeable in such a situation and promises Mr. Lamb that he does not know about him what he can do. Mr. Lamb at this tells him it is only his work to do such kind of thing. But once again Mr. Lamb challenges, telling him that he will not come here again after departure from the garden. But Dairy promises Mr. Lamb to come back again in the garden. After all, Dairy visits his home again and finding her mother there, his mother there. His mother was asking him where he was. Dairy replies her each and everything happened at the garden and likening for the garden. But Dairy's mother stops him to stay there at home. Dairy replies her that each and everything in the garden attracts to him. So he prefers to go there. And finally, Dairy sneaks away the house and finds himself again in Lamb's garden. But here, Mr. Lambs fell down from the ladder and died. Dairy cries loudly but finds Mr. Lamb dead and feels sorry for it. The play comes to an end with the lesson that a good man, a motivator, Mr. Lamb, dies who finds a doorway for Dairy who is downcast in the story. And Dairy becomes a positive one to face all the challenges in the life. The lesson is a motivation for the young generation who is distracted even at a little thing, which is get away from him. Now we have few words in Hindi. पार्ट ऑन द फेस ऑफ इट एक नाटक है जो एक वयस्क यानी वयोवृद्ध मिस्टर लैम और एक 14 वर्षीय बालक डेरी के बीच की कहानी है। डेरी के बाएं ओर का जो चेहरा है वो तेजाब से झुलस जाता है, जिसकी वजह से वो भागा भागा फिरता है और अपने आप को घर में कैद करके रखता है। जब कभी भी बाहर वो निकलता है तो उसे ऐसा लगता है कि लोग उसके चेहरे को देखते हैं और डर जाते हैं और उसके ऊपर भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं, इसलिए वो लोगों से बचना चाहता है। इसी क्रम में वो एक दिन घर से बाहर निकलता है और भागते भागते एक बगीचे के पास पहुंचता है जो मिस्टर लैम का बगीचा होता है। ये देख करके कि वहाँ पर शांत है, प्राकृतिक वातावरण है, कोई व्यक्ति नहीं है, वो चुपके से उस बगीचे में प्रवेश करता है दीवार फांद करके। लेकिन जब उसे मिस्टर लैम की आवाज़ सुनाई देती है तो वो चौंक जाता है और फिर से वहाँ से भागने का निश्चय कर देता है। मिस्टर लैम उसे समझाते हैं कि उसे वहाँ से भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई अन्य बच्चे वहाँ पर आते हैं और खेलते हैं और फलों को प्राप्त करते हैं। वह उन्हें टॉफ़ियाँ भी देते हैं और उन्हें आराम से खाते हैं। मिस्टर लैम उन्हें बताते हैं कि उनके पास भी एक पैर नहीं है, असली जो पैर है वो युद्ध में चला गया था, इसलिए उन्होंने टिन का पैर लगवाया है। लेकिन डेरी उनसे कहता है कि वे उसके ऊपर ट्राउज़र यानी पैजामा या पैंट पहन लेते हैं और वो हिस्सा छिप जाता है, लेकिन उसका आधा जला हुआ जो चेहरा है वो नहीं छिपता है। इसलिए डेरी कई बार कटाक्ष करता है और मिस्टर लैम से काफ़ी देर तक तर्क करता है। मिस्टर लैम एक धैर्यशील व्यक्ति हैं, वो उसे पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास करते हैं और यथाउचित उदाहरण दे करके समझाते हैं। एक बार तो वे उसे एक ऐसा उदाहरण देते हैं जिसमें एक व्यक्ति डर के मारे अपने आप को घर में कैद करके रखता है कि कहीं उसके पैर केले के छिलके पर न पड़ जाएं और वो फिसल करके न गिर जाए, कहीं कोई वाहन सड़क पर चलते समय उसके ऊपर न चढ़ जाए, उसे कुचल न दे, किसी लड़की से वो प्रेम करे और उसे धोखा देकर न चले जाए। ऐसी कुछ बातों को लेकर के वो घर में अधिकतर समय कैद रखता था। एक दिन दुर्भाग्यवश एक पेंटिंग उसके सिर पे ऊपर गिरी और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस पर डेरी जो है हंसता है, मिस्टर लैम भी उसका साथ देते हैं। लेकिन सारे उदाहरणों के बावजूद डेरी बार बार यही कहता है कि दुनिया की हर चीज़ बदल सकती है, लेकिन उसका जो आधा जला हुआ चेहरा है वो नहीं बदल सकता है। मिस्टर लैम उसे समझाते हैं कि जीवन में केवल जला हुआ चेहरा ही सब कुछ है। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको करके वो अपना जीवन यापन कर सकता है और अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। लेकिन डेरी कहता है कि जब कभी भी लोग उसके चेहरे को देखते हैं तो यही कहते हैं कि ये वो चेहरा है जिसको केवल माँ पसंद करेगी, कोई और नहीं पसंद करेगा। इसलिए वो लोगों से दूर भागता है और लोगों के उस टीका टिप्पणी से बचना चाहता है। बार बार वो कहता है कि
कोई भी उसे प्रेम नहीं करेगा, कोई भी उसके गाल पर चुम्बन नहीं देगा, केवल उसकी माँ ही करेगी, क्योंकि उसे ऐसा करना पड़ता है। मिस्टर लैम डेयरी को पूर्ण रूपेण तरीके से उचित उदाहरण दे करके समझाते हैं, और आखिरकार डेयरी जो है उनसे यही कहता है कि सब कुछ बदल सकता है, लेकिन उसका चेहरा नहीं बदल सकता है। मिस्टर लैम कहते हैं ये एक अच्छा बहाना है, अगर तुम घर पर चले जाओगे तो तुम वापस इस बगीचे में नहीं आ पाओगे। डेयरी कहता है कि मिस्टर लैम से कि उन्हें ये नहीं मालूम कि वो क्या कर सकता है। मिस्टर लैम कहते हैं भाई ये चीज़ आप ही कर सकते हो, ये आप ही के ऊपर है। लेकिन वो भी कहते हैं कि अगर तुम एक बार यहाँ से गए तो तुम घर से वापस नहीं आ पाओगे। डेयरी कहता है मैं वापस आ जाऊँगा, मैं वापस आ जाऊँगा, देख लेना। डेयरी घर जाता है, जहाँ पर अपनी माँ को पाता है। उसकी माँ उससे कहती हैं कि तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। डेयरी कहता नहीं, मुझे वो जगह अच्छी लगती है, मुझे उसके विचार अच्छे लगते हैं, मुझे वहाँ सब कुछ अच्छा लगता है, और अगर मैं इस समय वहाँ नहीं जा पाया तो कभी दोबारा नहीं जा पाऊँगा। अपनी माँ के कई बार रोकने के बावजूद भी डेयरी फिर से मिस्टर लैम के बगीचे में पहुँचता है, और जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि मिस्टर लैम सीढ़ियों से गिर गए होते हैं और मृतप्राय होते हैं, और उनकी मृत्यु हो जाती है। डेयरी बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, सिसकियाँ भरता है, और पूरी तरह से रोता है और पश्चाताप करता है। लेकिन वो व्यक्ति जिसने उनका मार्गदर्शन किया डेयरी का, वो अब इस दुनिया में नहीं है। नाटक या एकांकी इस चीज़ को सिखाती है कि जीवन में हमें विषम परिस्थितियों में भी धैर्यवान होकर के आने वाले कल का, आने वाली चुनौतियों का सामना करना होता है। एक कमियां या कई कमियां होने के बावजूद भी जीवन के कुछ अलग पहलू हैं जिनको हमें समझना होगा, और उन्हीं के आधार पर जीवन को जीना होगा। किसी चीज़ से अगर हम अपना एस्केपमेंट ढूंढते हैं, यानी उससे दूर हटने की कोशिश करते हैं, तो जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। जीवन को हमें चुनौतियों का सामना करके जीना ही पड़ेगा। इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दें। इस सारांश को आप समझिएगा और उसके बाद कमेंट में शेयर करके बताइएगा कि ये आपको कैसा लगेगा। और जो नए लोग देख रहे हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।